Good morning, students. Once again, I, Manish Bansal, welcome you all to the online class. And in today's class, we are going to continue with the chapter. And in this video, we will finish or we will understand what is series combination of resistances, what is parallel combination of resistances, and what are how the numericals are solved, in which some series or parallel combination has been given. So first of all, let us start from the basics, in which we will start series combination of resistances. Let me read the definition for you first. When two or more resistances are connected end to end means one after the another and the third one after the second, in this way, it is called series combination. इसका मतलब है जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस, when two or more resistances are connected end to end means the second end, just focus here, the second end of the first resistor is connected to the first end of the second resistor, and the second end of the second resistor is connected to the first end of the third resistor, and in this way the combination goes on. So this is called series combination. In this combination, the total resistance increases. This is a particular type of combination in which the total resistance increases. And now what is the total resistance? If we combine all these resistances, then the total resistance R, that is also called the equivalent resistance. The equivalent resistance capital R will be equal to R1 plus R2 plus R3, means it will be equal to the sum. It will be equal to the sum of all the three resistances. Now, let us come to the parallel combination. What is parallel combination? Parallel combination means when the first end of all resistances, first end means this end, इसका ये वाला, इसका ये end और third resistance का ये end, when all the first ends of all the resistances are connected at the same point, are connected to the same point, and the last end of the resistors, last end of the resistor is also connected to the different point but same point. So it is called parallel combination. You can easily understand, definition may be a bit difficult, but you can easily understand through the diagram. You can see that there are three resistances, R1, R2 and R3, and these are the first ends of the all three resistances, and they are connected to the same point, and the second end is also connected to another point. So in this way, all three resistances are connected in the parallel combination. I hope through the diagram it is clear for you. Now what happens to the resistance in this case? When we talk about the parallel combination of resistance, the overall resistance decreases. The overall resistance decreases. You can say the equivalent resistance decreases. How much it decreases? The formula is this. The reciprocal of the equivalent resistance, this is called reciprocal. The reciprocal of equivalent resistance is equal to the sum of all the resistances reciprocals. नहीं आया समझ में? इसका मतलब यह है कि किसी भी, अगर मैं तीन रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूं, तो इनका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आएगा उसका रेसिप्रोकल सभी रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर होगा. It will be equal to the sum of the reciprocals of all the resistances. We will also derive all these equations. हम इसको भी derive करेंगे. अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप एक तरीके से और पता कर सकते हैं कि कोई रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है. आप कैसे पता कर सकते हैं? एक करंट ले लीजिए. ये मैंने एक करंट ले ली I. जस्ट ट्रेस द पाथ ऑफ दिस करंट. इस करंट के पाथ को आप ट्रेस कीजिएगा. दिस I करंट विल फ्लो थ्रू R1, एंड आफ्टर पासिंग द R1 it will reach here at this point. And just tell me whether this current has any other pathway other than going to R2. क्या इस करंट के पास R2 में जाने के सिवा कोई और रास्ता है, कोई और पाथ है? R1 से निकली और R2 में जाना ही होगा.
इसका मतलब है ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। R2 से निकलेगी तो डेफिनेटली R3 में जाएगी because the current does not have any other pathway, does not have any other alternate pathway. So that means all the three resistances are connected in series. Means if the current flowing through all the resistances is same means जितनी करंट R1 से निकलेगी उतनी R2 में जाएगी, जितनी R2 से निकलेगी उतनी R3 में जाएगी. That means the current is same. So this is a very important fact for you which will also help you to solve numericals, that in series combination resistance current becomes same, current remains same in all the resistances. सभी resistances में current क्या रहती है, same रहती है और current के पास कोई और रास्ता नहीं होता है. इसमें अगर आप देखें तो करंट के पास ये मैंने मान लिया करंट मेरी I करंट है. अब करंट इस पॉइंट पर आकर विच इज कॉल्ड अ जंक्शन, यू विल कॉल इट अ जंक्शन, इस पॉइंट पर आकर करंट के पास तीन अल्टरनेट पाथवेज हैं. हाउ मेनी अल्टरनेट पाथवेज आर available for the current? There are three alternate pathways. Current can go to R1, current can go to R2, current can go to R3, or I must say current will go to all the resistances at the same time. यानी कि करंट के पास तीन पाथवे हैं, R1 में भी जाएगी, उसी वक्त R2 में भी जाएगी, उसी वक्त R3 में भी जाएगी, और तीनों करंट्स सिमिलर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं. ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर, मैं आपको आगे बता दूंगा. कुल मिलाके यहां पर करंट के पास अल्टरनेट पाथवे है. इसका मतलब है ये तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में तो बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है. दैट मींस ऑल दीज थ्री रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. आई होप आपको इस तरीके से समझ में आया होगा. तो सीरीज में हमेशा करंट क्या रहती है, सेम रहती है. सीरीज में क्या रहती है, करंट हमेशा सेम रहती है, लेकिन पैरेलल में करंट सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. तो फिर क्या सेम रहता है, ध्यान रखिएगा, पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल सेम रहता है. क्या सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है. बिकॉज all the 3 points, all the 3 resistances are connected to the same battery, same point, plus minus. You can easily check. R1 is connected to this plate, R2 is also connected to this plate, R3 is also connected to this plate, but it is not here. यहां नहीं है. कैसे, let me show you. You can see that if I connect all these three resistances with one battery, plus minus, then you can see the resistance R1, the first point is connected to positive plate, but the second point is not connected to negative plate. In the same way, the resistance R2 is not directly connected to this potential, and the second point of R2 is not connected to this plate. That means we cannot say whether potential will be same here and same here. No, potential may be same, may be different. अब कब सेम होगा कब डिफरेंट होगा मैं आपको भी बता दूंगा, बट सर्टेनली वन थिंग विल बी सेम, दैट इज करंट. यहां पर क्या सेम रहेगी, करंट सेम रहेगी. अगेन मैं आपको बता रहा हूं, पोटेंशियल सेम हो भी सकता है, पोटेंशियल तीनों पर सेम नहीं भी हो सकता है. ये डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू पर. हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, मैं इसको अच्छे से समझेंगे. इन द सेम वे यहां पर पोटेंशियल डेफिनेटली सेम होगा. फॉर ऑल द थ्री रेजिस्टेंसेस पोटेंशियल विल बी डेफिनेटली सेम, बट करंट अगेन द सेम केस, मे बी सेम और मे बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस. आई होप यहां तक आपको इसका बेसिक समझ में आया होगा. अब हम अगले स्टेप में इन फॉर्मूलों को डिराइव करने जा रहे हैं. सबसे पहले हम सीरीज का फॉर्मूला डिराइव करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिराइव द फॉर्मूला ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट इज R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. And what is the basis of deriving all these formulas, whether it is series or parallel? It is the Ohm's law. हम Ohm's law के आधार पर इनको derive करेंगे. Now, just see here. There are three resistances connected in series. Now what we have to find out, we have to calculate, we have to derive the formula for the equivalent resistance. So if we apply, we know one thing very well, that in series combination what remains same, the current remains same. We have to apply this concept also. हमें क्या सेम रखना है, करंट सेम रखना है. और क्या डिवाइड हो जाता है, क्या इसमें बट जाएगा, इसमें पोटेंशियल डिवाइड्स होता है. तो मैं आपको एक चीज लिख देता हूं,
in series combination current remains same but potential difference divides across resistances. आपको ये समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं. सपोज कीजिए हमने V वोल्ट की बैटरी लगाई. How much potential difference we have applied across all the three resistances? That is V volt. So some potential will be here, that is V1. Some potential will be here, that will be V2, and some potential will be here, that will be V3. Potential 1, potential 2, potential 3. This is individual potential. What is this? This is individual potential for R1. V2 is individual potential for R2 and V3 is individual potential for R3. हम इसको वोल्ट मीटर की मदद से नापते हैं. मैं आपको उसको टॉपिक के लास्ट में बता दूंगा. हमने तीनों पोटेंशियल्स को यहां पर लिख लिया. अब एक चीज आप मुझे बताइए, आपके पास टोटल कितना पोटेंशियल है? V. कितना है टोटल पोटेंशियल? V है. तो आप जितना भी डिवाइड कर रहे हैं, क्या इन तीनों का सम इस V के बराबर नहीं आएगा? ऑफ कोर्स. आप जितने भी पोटेंशियल्स को डिवाइड कर रहे हैं, V1 में, V2 में, V3 में, अगर चौथा भी होता तो V4 भी हम उसको ले लेते. बट वन थिंग इज वेरी श्योर दैट द सम V will be equal to V1 plus V2 plus V3. This is the starting equation. This is the equation from where we have to start the derivation. I hope आपको ये समझ में आया होगा कि ये कहां से आया. ये सीरीज के लिए बिल्कुल ट्रू है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है, पोटेंशियल बट जाता है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है. इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिवाइड्स अक्रॉस रेजिस्टेंसेस. सारे रेजिस्टेंसेस में पोटेंशियल बट जाता है और बटेगा कितना? इतना बटेगा. इसका मतलब है इन तीनों का जो सम होगा वो V के इक्वल आएगा. अब आप जानते हैं V1, V equal to IR. You know this law. This is called Ohm's law. V equal to IR. If I convert this equation for V1, then V1 will be equal to IR1. Now you must be wondering why I have not used 1 with I. मैंने इसमें I1 क्यों नहीं किया? आपके लिए इसका जवाब यह है कि पूरे सर्किट में करंट सेम है. पूरे सर्किट में क्या है? करंट सेम है. जैसा कि हम जानते हैं करंट रिमेन्स सेम, और जो चीज सेम है वो 1 2 3 में कैसे डिवाइड हो सकती है? 1 2 3 में कौन डिवाइड होता है? जो बट रहा है, जो डिवाइड हो रहा है. दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड 1 विद पोटेंशियल बिकॉज पोटेंशियल इज गेटिंग डिवाइडेड. आई हैव यूज्ड 1 2 3 फॉर रेजिस्टेंस बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन. सो I will not be categorized as I1, as I2 और I3. ये हमें सेम रखनी है. तो क्या V1 equal to IR1 हो सकता है? This is equation number 1. In the same way V2 will be equal to IR2. In the same way V3 equal to IR3. I hope आपको ये तीनों टर्म्स समझ में आए होंगे. और अगर हम इन तीनों को मिलाकर एक ओवरऑल रेजिस्टेंस R माने, क्या माने? एक ओवरऑल रेजिस्टेंस R माने और टोटल सर्किट की करंट I माने, सर्किट का टोटल पोटेंशियल V माने, तो इन तीनों रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन के लिए ये इक्वेशन फॉलो होगी. कौन सी इक्वेशन फॉलो होगी? दिस इक्वेशन विल बी फॉलोड फॉर द ऑल सर्किट. दिस इक्वेशन विल बी फॉलोड फॉर रेजिस्टेंस R1. दिस इक्वेशन विल बी फॉलोड फॉर रेजिस्टेंस R2 एंड दिस फॉर R3. सो वी विल पुट ऑल द वैल्यूज. V equal to IR. Here what is R? Here R is the total resistance. R क्या है? यहां पर equivalent resistance है, total resistance है. तो मैं इसके नीचे बेस में EQ लगा देता हूं. V1 equal to IR1. V2 equal to IR2. V3 equal to IR3. Now R इक्विवेलेंट इक्वल टू I ब्रैकेट में अपन ने कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3. सो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. नाउ यू कैन सी दैट इज in just 3 or 4 steps we can derive this equation very easily. एंड दिस इज नॉट वेरी मच डिफिकल्ट. ये बहुत ही आसान डेरिवेशन है. इसी तरह से पैरेलल की भी बहुत आसान है.
स्टार्टिंग इक्वेशन ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग इक्वेशन आपकी हमेशा सीरीज के लिए ये वाली होगी और पैरेलल के लिए कौन सी होगी, अपन अगले स्टेप में इसको पढ़ेंगे। आई होप आपको ये रेजिस्टेंसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन समझ में आया होगा। नाउ लेट अस मूव। अच्छा, एक कंडीशन आपको बता देता हूं, सपोज ऑल द रेजिस्टेंसेस आर इक्वल इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ओरली इसको याद कर लेना है, समझ लेना है। सपोज कीजिए सारे रेजिस्टेंसेस, 3 रेजिस्टेंस तीनों बराबर हैं। क्या है, तीनों रेजिस्टेंसेस बराबर हैं, इक्वल हैं, तो इनमें जो पोटेंशियल डिवाइड होगा V1 V2 V3 ये भी आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए मैंने यहां पर 12 वोल्ट की बैटरी दी है। कितनी दी है, 12 वोल्ट की बैटरी दी है। इफ द बैटरी इज ऑफ 12 वोल्ट then if all the 3 resistances are equal, then 4 volts will be here, 4 volts will be here, and 4 volts will be here. And what is the sum of all these 3 volts? 4 plus 4 plus 4 equal to 12 volt. क्योंकि इन तीनों पोटेंशियल्स का सम इसके बराबर आना चाहिए। आपके पास 12 वोल्ट हैं, आप 14 वोल्ट कैसे बांट दोगे, आप बांटोगे तो 12 ही वोल्ट ना। सो इफ यू हैव 12 वोल्ट, दैट मींस यू हैव टू डिवाइड 12 वोल्ट्स अक्रॉस ऑल दीज और अमॉन्ग ऑल दीज रेजिस्टेंसेस। अब एक और कंसेप्ट बताता हूं। अगर मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस बड़ा है, फॉर एग्जांपल R1 इज बिगर, R2 इज स्मॉलर एंड R3 इज स्मॉलेस्ट, तीनों इक्वल नहीं है, फिर पोटेंशियल्स का कैसा क्या डिवीजन होगा, तो सुनिएगा ध्यान से। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस, ये सब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको ये कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, पोटेंशियल की बड़ी वैल्यू उसके पास जाएगी, मींस इट विल गेट द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल आउट ऑफ 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की मैक्सिमम वैल्यू इसके पास जाएगी। जो रेजिस्टेंस सबसे छोटा होगा, जो रेजिस्टेंस सबसे छोटा होगा, 12 वोल्ट की सबसे छोटी वैल्यू ये रखेगा और बची हुई वैल्यू ये रखेगा। इसका मतलब है पोटेंशियल इज ऑल्सो डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंसेस। ये भी कौन बताता है हमको, ओम्स लॉ बताता है। कैसे बताता है मैं आपको बता देता हूं। V इक्वल टू IR, आपने ये ओम्स लॉ पढ़ा है। कांस्टेंट कौन है यहां पर, क्या यहां पर करंट कांस्टेंट है, आप चेक कर सकते हैं। हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट, करंट रिमेन्स कांस्टेंट, तो दिस इज कांस्टेंट। ये कौन सी वैल्यू है, कांस्टेंट। व्हेन I इज कांस्टेंट देन V प्रोपोर्शनल टू R। क्या V प्रोपोर्शनल टू R नहीं हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल ज्यादा होगा अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो हमने यही तो पढ़ा हमने कि अगर R1 की वैल्यू सबसे ज्यादा है देन पोटेंशियल विल बी हाईएस्ट हियर। If R3 is smallest, potential will also be smallest. But one thing is very clear, the sum of all 3 potentials will be equal to this. इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम भी नहीं होगा, हमेशा इसके इक्वल होगा। यानी कि तीनों पोटेंशियल्स का सम, इस पर कितना जा रहा है, इस पर कितना जा रहा है, इस पर कितना जा रहा है, डजंट मैटर, तीनों का सम इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है। दूसरी शर्त, अगर R1 की वैल्यू ज्यादा है तो इस पर बड़ा पोटेंशियल होगा, R3 की वैल्यू छोटी है, सबसे छोटी है तो सबसे छोटा पोटेंशियल इस पे होगा, और R2 का पोटेंशियल इससे कम और इससे ज्यादा होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अच्छा, मैं कुछ आपको ओरल सॉल्व करवाता हूं क्वेश्चन। सपोज कीजिए यहां पर केवल 2 रेजिस्टेंसेस हैं। लेट मी मेक द कंसेप्ट वेरी सिंपल। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको ओरल सॉल्व करने की ट्रिक बता देता हूं। सपोज this is 12 volt and this is 4 ohm, this is 8 ohm. Now you can see that the resistances are not equal. Resistances कैसे नहीं है, इक्वल नहीं है। इस पर है 4 ohm, इस पर है 8 ohm। अच्छा, पहली सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैं इसको दोनों को इक्वल करके समझाता हूं। दोनों इक्वल करते हैं, क्या दोनों पर 8 ओम है। अगर दोनों रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं तो आपको याद होगा मैंने बताया था पोटेंशियल्स भी इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। When 8 ohm is the resistances of both the resistances, then 12 volt will be divided equally. Then what is the half of 12 volt? It is 6 volt. हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब मैं आपको एक एक सवाल इस तरह का कराऊंगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है। So what will be the potential? Potential will be 6 volt, 6 volt. अगर मैं और ज्यादा
8 ओम के रेजिस्टेंसेस दे दूं तो 12 में भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस का क्या लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा, और उतना ही पोटेंशियल आपका इस पर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और दे दूं, जैसे कि 8 ओम के 3 रेजिस्टेंस दे दूं तो 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया, 4। here will be 4 volt, here will be 4 volt and here will also be 4 volt अगर तीसरा रेजिस्टेंसेस है तो। ऐसे कितने भी आप कर सकते हैं, टोटल पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और पोटेंशियल की वैल्यू और छोटी होती जाएगी और छोटी होती जाएगी और छोटी होती जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसको करता हूं छोटा। ये आपका 4 ओम है, फर्स्ट रेजिस्टेंस 8 ओम है। अब आप मुझे बताएं क्या दोनों रेजिस्टेंसेस सेम है, क्या दोनों रेजिस्टेंस सेम है? दोनों रेजिस्टेंस सेम नहीं है, एक डबल है पहले वाले का, यानी कि ये जो 8 ओम है ये 4 ओम का क्या है, डबल है। अब ध्यान रखिएगा, अगर ये शर्त पैदा हो जाती है, ये कंडीशन पैदा हो जाती है, व्हेन वन रेजिस्टेंस इज डबल ऑफ द प्रीवियस, डबल ऑफ द सेकंड रेजिस्टेंस, देन द पोटेंशियल ऑन दिस रेजिस्टेंस विल आल्सो बी डबल ऑफ द पोटेंशियल ऑन दिस रेजिस्टेंस। अब आपको क्या करना है, 8 ओम और 4 ओम पर पोटेंशियल कितना होगा, सबसे पहली बात तो पोटेंशियल इस पर जितना होगा वो इसका डबल होगा, पहली शर्त, और दोनों का सम 12 होगा। तो 8 वोल्ट इस पे होगा और 4 वोल्ट इस पे होगा। आप देख सकते हैं 4 का डबल 8 और दोनों का सम कितना, 12 वोल्ट। तो ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आना चाहिए कि अगर पोटेंशियल डबल है, सॉरी रेजिस्टेंस डबल है किसी दूसरे रेजिस्टेंस का, तो पोटेंशियल भी कितना आएगा, उस पोटेंशियल का डबल आएगा। बट अगेन दोनों का सम उतना ही रहेगा जितना आप ओरिजिनली प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन यहां पर इसके खत्म हो जाते हैं। अब हम आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन, this is called key, plus minus, this is current I, R1 R2 R3। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम टेकिंग 3 रेजिस्टेंसेस R1 R2 and R3 in parallel combination. Which combination? Parallel combination, and they are connected with a battery of potential V. This is called key. तो V पोटेंशियल की बैटरी के साथ इन तीनों को मैंने सीरीज पैरेलल में जोड़ दिया है। अब आप मुझे बताएं क्या करंट डिवाइड नहीं हो जाएगी इन तीनों रेजिस्टेंसेस में? यस, current will be divided. Suppose here I1 current goes, here I2 current goes, and here I3 current goes. So the all current I, the whole current I divides into 3 currents I1, I2 and I3 which goes in individual branches, जो individual branch में जा रही हैं। आपको मैंने एक चीज बताया था बल्कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट गेट्स डिवाइडेड, एज यू कैन सी current gets divided but potential remains same. Potential remains same because all the 3 resistances are ultimately or finally connected to same plate, and all the other ends of resistances are connected to the same plate, but it was not so in the series combination. तो हम कह सकते हैं in parallel combination potential remains same, but what divides? Current gets divided. करंट गेट्स डिवाइडेड, तो करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर, दिस विल बी द इनिशियल फॉर्मूला। ये क्या होगा? हमारा इनिशियल फॉर्मूला होगा जिससे हमें इस डेरिवेशन की स्टार्टिंग करनी है। आपको याद होगा सीरीज की हमने स्टार्टिंग यहां से करी थी। क्यों की थी? बिकॉज इन सीरीज पोटेंशियल डिवाइड होता है, इन पैरेलल करंट डिवाइड होती है। तो जो भी चीज डिवाइड होती है हमें स्टार्टिंग इक्वेशन की, डेरिवेशन की वहीं से करनी है, ये आप याद रखिएगा।
अब अगेन हम थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे। बताइए मुझे, ओम्स लॉ से स्टार्टिंग करेंगे। वी नो दैट V इक्वल टू आई आर, बट इन दिस केस वी हैव टू कैलकुलेट I, सो I इक्वल टू वी आर। हम इस इक्वेशन से स्टार्टिंग करेंगे। देखिए ध्यान से, what will be the value of current in resistance R1? रेजिस्टेंस R1 में करंट की वैल्यू कितनी होगी? I1 for R1, I am solving this equation for R1. I1 equal to V upon R1. Now again you must be wondering why I have not used 1 with V. मैंने V के साथ 1 2 3 आगे इस्तेमाल क्यों नहीं करूंगा? इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हम पैरेलल सॉल्व कर रहे हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल रिमेन्स सेम थ्रू आउट द सर्किट। पूरे सर्किट में पोटेंशियल सेम रहता है। सो इफ पोटेंशियल इज सेम देन वी कैन नॉट गिव इट 1 2 3। ओके, तो पोटेंशियल हमारा सेम रहेगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, this is equation number 2. For R2 I will solve it for R2. So I2 will be equal to V upon R2. This will be equation number 3. For R3 if I solve, I3 will be equal to V upon R3. V upon R3. This will be equation number 4. Now we can easily put I1 plus I2 plus I3 value here from these equations, and suppose I say that remove all these three resistances, there is one resistance R. There is one resistance R which is equivalent to all these three. यानी कि इन तीनों का इक्विवेलेंट अगर ये R है, अगर इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये R है, तो इसकी टोटल करंट कितनी होगी? ये I होगी। तो हम इन चारों की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं। I इक्वल टू V अपॉन R, वी विल पुट हियर इक्विवेलेंट V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 plus V upon R3. After that what will happen? You know very well, V will be taken common, so 1 upon R EQ equal to 1 upon R1, 1 upon R2 plus 1 upon R3. In this way you can easily identify, easily calculate the equivalent resistance when 3 or more or any number of resistances are connected in parallel combination. आई होप आपको यहां तक रेजिस्टेंसेस कैलकुलेट करना आया होगा। अगर केवल 2 रेजिस्टेंसेस दिए हों, कितने रेजिस्टेंसेस दिए हों? केवल 2 रेजिस्टेंसेस दिए हों और दोनों की वैल्यू अलग अलग है, जैसे कि R1 और R2 है, तो इनके लिए इसी को सॉल्व करके एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनता है R इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. You can also use this shortcut formula to calculate the equivalent resistance when two resistances R1 and R2 are connected in parallel. Now one more shortcut trick. I will try to give you as many shortcut tricks as I can give, so that it will be very helpful for solving the numericals. Suppose four resistances are given in parallel. Four resistances are connected in parallel and all the four resistances value is same. चारों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू कितनी है? सेम है। ध्यान रखिए कि ये जो ट्रिक है ये केवल तभी फॉलो होगी जब सभी रेजिस्टेंसेस सेम वैल्यू के हैं और रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। देन व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? आपको 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लीजिए, R, किसी भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लीजिए। फॉर एग्जांपल ये सब 20 ओम के हैं, 20 20 20 20, तो आपने यहां पर लिखा 20, यानी कि वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस 1 2 3 4. In this case n will be equal to 4. So in this shortcut way you can easily identify the equivalent resistance only when all the resistances are connected in parallel and all have the same value. For example ये सभी 20 ओम के हैं, then what will be your resistance? 20 divided by 4. Why 20? Because one resistance value is 20,
Why divided by 4? Because 4 are connected in parallel. So the resistance will be 5 ohm. You can check it by going this formula. आप इस फॉर्मूले को लगाकर चेक कर सकते हैं, आपका आंसर 5 ओम ही आएगा। आई होप ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ हिंट देता हूं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। जब भी पैरेलल का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आएगा, आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, I1 इक्वल टू V अपॉन R1, क्योंकि करंट निकालने में आपको इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना होगा। इंडिविजुअल करंट, पर्टिकुलर करंट जो R1 में जा रही है, पर्टिकुलर करंट जो R2 में जा रही है, पर्टिकुलर करंट जो R3 में जा रही है, to identify or to calculate that particular current, you will have to solve this equation. Means the overall potential, because there is no individual potential. So overall potential divided by individual resistance. Overall potential divided by individual resistance, you will easily calculate the individual current. Okay. अगर आपको सीरीज का कोई सॉल्व करने को आए तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। अगर आपको सीरीज का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आता है कि पोटेंशियल निकालिए, सीरीज में दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, एक की वैल्यू है 2 ओम, दूसरे की 4 ओम, तो 2 पर कितना पोटेंशियल होगा, 4 पर कितना पोटेंशियल होगा। सो in this case you will have to use this formula. Okay, so let me solve some numericals for you so that it will be better understandable. Now I am giving you diagram based numericals. Here I have given you a circuit diagram in which a 12-volt battery is there. Two resistances 4 ohm and 2 ohm are connected in series. 4 ohm and 2 ohm are connected in series. One ammeter is there. Ammeter measures the current and ammeter is always connected in series. And this is voltmeter. Voltmeter connected to parallel. It measures the potential difference. ध्यान रखिएगा, वोल्टमीटर क्या नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। 4 ओम के सिरे पर अक्रॉस 4 ओम कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ये नापेगा और इसकी वैल्यू लेट अस से V1. So what are the questions? Question number 1, calculate total resistance of circuit. Question number 2, calculate total current of circuit. Question number 3, calculate potential difference across 4 ohm. और क्वेश्चन नंबर 4 भी दे ही देता हूं, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ohm. These 4 questions we have to solve. कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का आई थिंक आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी। टोटल रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 ओम। आपका पहला तो चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। टोटल रेजिस्टेंस बिकॉज 4 and 2 ohm are connected in series, so series is just normal sum, so 4 will be added to 2, so your answer will be 6 ohm. And calculate the total current. टोटल करंट, ध्यान दीजिएगा, जब भी टोटल पूछा जाए, क्या पूछा जाए सर्किट में, टोटल, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल्स में टोटल भी पूछ सकते हैं और इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं। मैंने दोनों पूछे हैं। क्या पूछा है, टोटल करंट भी पूछी है और इंडिविजुअल में क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो जब भी टोटल अगर मैं किसी का पूछूं, ओवरऑल करंट पूछूं, तो आपको फॉर्मूले की हर चीज ओवरऑल इस्तेमाल करनी है। आपको फॉर्मूले में क्या इस्तेमाल करना है, हर चीज ओवरऑल सर्किट के लिए इस्तेमाल करनी है। और करंट का फॉर्मूला होता है I
इक्वल टू V अपॉन R। ये आपको याद होगा, ओम के लॉ से बनता है। आपको सर्किट की टोटल करंट निकालनी है तो I ओवरऑल करंट इज इक्वल टू ओवरऑल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय ओवरऑल रेजिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, कुछ भी इंडिविजुअल इसमें नहीं आएगा। तो ओवरऑल करंट I विल बी इक्वल टू ओवरऑल पोटेंशियल दैट इज 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय ओवरऑल रेजिस्टेंस। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन पैदा हो सकता था कि R कौन सा रखें, वेदर इट विल बी 4 ओम और इट विल बी 2 ओम और इट विल बी 6 ओम। तो ध्यान रखिएगा, आप अपने आप से सवाल पूछिए कि हम निकाल क्या रहे हैं। हम अगर ओवरऑल करंट निकाल रहे हैं तो हमें रेजिस्टेंस भी ओवरऑल रखना होगा, दैट विल बी 6 ओम। तो द करंट विल बी 2 एम्पियर। सो दिस इज सॉल्व, दिस इज ऑल्सो सॉल्व। व्हाट इज योर ओवरऑल करंट? I इक्वल टू 2 एम्पियर। और ये आपको किसी भी पोटेंशियल को निकालने से पहले सॉल्व करनी ही पड़ेगी। कोई भी पोटेंशियल आपको निकालना हो, आपको इसे सॉल्व, करंट को निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम करते हैं कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी कौन सा वाला? इंडिविजुअल वाला। तो हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूले आपको सीरीज वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएंगे। V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2। So V1, we have to calculate V1. V1 means this potential. So V1 equal to I. What is this I? आप सोचिए, क्या ये I यही वाली है या कोई और I है? पूरे सर्किट में केवल एक ही करंट है, वो ये है, क्योंकि सर्किट सीरीज का है। एंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हाट रिमेन्स सेम? करंट रिमेन्स सेम। सो दिस विल बी 2 into R1. Here R1 is this individual 8 volt. So V1 will be equal to 8 volt. In the same way हमने ये भी सॉल्व कर लिया। अब हम निकालते हैं across 2 ohm. So V2, I will be 2. What will be the value of R2? R2 is 2 ohm. That will be equal to 4 volts. 8 volt here, 4 volt here. Now you can check whether the sum of the potentials is equal to this or not. आना ही चाहिए, बिकॉज आपके पास टोटल 12 वोल्ट हैं और आप 12 वोल्ट को जब बांटोगे तो जो भी सम आएगा वो इन सभी पोटेंशियल्स का वो 12 वोल्ट के इक्वल ही आएगा। वन मोर थिंग, आपको मैंने एक कंसेप्ट और बताया था कि अगर रेजिस्टेंसेस, एक रेजिस्टेंस पहले वाले का या दूसरे वाले का डबल है तो पोटेंशियल की वैल्यू भी कितनी आएगी? डबल आएगी। तो देख सकते हैं आप, पोटेंशियल की वैल्यू डबल है। 8 वोल्ट 4 वोल्ट से डबल है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 2 के डबल है। तो ये सभी कंसेप्ट आपके ट्रू साबित होंगे। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर कोई भी न्यूमेरिकल का आंसर इस कंसेप्ट से अगेंस्ट जा रहा है, दैट मींस यू हैव कमिटेड एनी एरर while solving the numerical. Try it again, because the sum will be always equal to the overall potential and the relation will also be true. Whether the resistance is double, the potential will also be double. I hope this numerical is clear. Now we will move on to one numerical of parallel combination. Parallel. $18 volt. This is R1 and its value is 6 ohm, 4 ohm and 9, 6 and 3. 9 ohm, 6 ohm, 3 ohm, and this is 18 volt battery. Here it is current I. So definitely I1 current will go here, I2 current will go here, and I3 current will go here, and ultimately again I current will come out. अब हमें इसमें सॉल्व करना है। क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाते हैं पैरेलल में? ओवरऑल रेजिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 2 ओवरऑल करंट I,
क्वेश्चन नंबर 3, I1, I2, I3, these currents can also be asked. Okay, potential across 6 ohm, potential difference across 6 ohm, ये आपके लिए क्वेश्चन मैंने पूछा है, तो ध्यान सुनिएगा इनको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये सभी पैरेलल में है। किस में है? पैरेलल में है। और जब भी कोई रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं पोटेंशियल सेम रहता है। क्या रहता है? पोटेंशियल सेम रहता है। यानी 9 ओम रेजिस्टेंस इज आल्सो कनेक्टेड टू 18 वोल्ट, 6 ohm resistance is also connected to 18 volt and 3 ohm resistance is also connected to 18 volt। तो ये क्वेश्चन तो हमारा वैसे ही सॉल्व हो गया कि 6 ohm रेजिस्टेंस के सिरे पर कितना पोटेंशियल होगा, दैट विल बी 18 वोल्ट विदाउट एनी डाउट। किसी पे भी पूछ ले 9 वोल्ट का कितना पोटेंशियल होगा, 3 ओम का कितना पोटेंशियल होगा, सबका आंसर 18 वोल्ट आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे 9 ओम में कितनी करंट होगी, 6 ओम में कितनी करंट होगी एंड 3 ओम में कितनी करंट होगी, इन तीनों के आंसर डिफरेंट आएंगे। देखते हैं कैसे। I1 हमें करंट निकालनी है। I1 इक्वल टू V अपॉन R1 फॉर पैरेलल, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3। नाउ वी कैन सॉल्व देम वेरी इजीली। I1, what is the value of V? V is the potential and you can see there is only one value of potential for all the circuit, that is 18 volt. What is the value of R1? 9. 2 ampere. What is the value of current? 2 ampere. I2. What is the value of I2? Let us calculate. V again 18. What is the value of R2? R2 is 6 ohm. 3 ampere. I3. V कितना? 18. Upon R3. R3 value is 3. 3 6 are 18. So what will be the total current? 6 or 3, 9 or 2? 11 ampere. So we have calculated I1, we have calculated I2, we have calculated I3 and we have calculated overall I। अगर आपको चेक करना है कि क्या सर्किट की टोटल करंट 11 एम्पियर है, मैंने सही किया है, तो आपको एक स्टेप और करना होगा। आपको इन तीनों का ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना होगा, जो हमने अभी नहीं निकाला है। ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/3, द LCM विल बी 18। 9 2 जा 18, 2 1 जा 2, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 1 जा 6। So 1/R equal to 18, 6 और 3 9, 9 और 2 11। So what will be the value of R? ध्यान रखिए, इसको पलटना ना भूलिएगा। 18/11, this is the value of resistance, 18/11। इसको इसमें रखा रहने दीजिए। अच्छा, अब हम निकालते हैं ओवरऑल करंट इन सिंगल स्टेप। अभी आपके पास दो तरीके हैं, I1 निकालिए, I2 निकालिए, I3 निकालिए, तीनों को जोड़ दीजिए। नाउ वी विल कैलकुलेट द ओवरऑल करंट इन सिंगल स्टेप। उसके लिए हमें R निकालना ही पड़ेगा। हमने टोटल R निकाल लिया। इसके बाद अब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू रखूंगा, I इक्वल टू V अपॉन R। इन दिस फॉर्मूला एवरीथिंग इज ओवरऑल। I ओवरऑल करंट जो हमें कैलकुलेट करनी है, और कितनी आनी चाहिए? हमारी 11 एम्पियर आनी चाहिए। हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअल को जोड़ने पर 11 एम्पियर आ रही है, तो हमारी ओवरऑल करंट हम किसी भी और तरीके से जब कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल करंट 11 एम्पियर ही आनी चाहिए। व्हाट इज V? ओवरऑल पोटेंशियल। व्हाट इज R? ओवरऑल रेजिस्टेंस। सो लेट अस कैलकुलेट। व्हाट इज V? 18 वोल्ट। व्हाट इज R? 18/11। सो 18 कट, 11 will be upside, so I equal to 11 एम्पियर। अगेन यू कैन सी दैट करंट इज कमिंग सेम, आनी ही चाहिए, क्योंकि ये सेम डायग्राम है, सेम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, दो डिफरेंट तरीकों से। तो पैरेलल में इंडिविजुअल करंट्स होती हैं, इन तीनों का सम ओवरऑल करंट के इक्वल आएगा। इसका मतलब है यहां से 11 एम्पियर करंट जा रही है, इसमें जा रही है आपकी 2 एम्पियर, और 6 ओम में जा रही है आपकी 3 एम्पियर, और इसमें जा रही है आपकी 6 एम्पियर, और मिलके यहां पर अगेन 11 एम्पियर करंट बाहर
आ रही है। तो इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको मैं, अगर ये सभी रेजिस्टेंसेस इक्वल होंगे, अगर 9 ओम 9 ओम 9 ओम तीनों रेजिस्टेंसेस इक्वल होंगे, तो ध्यान रखिएगा द अमाउंट ऑफ करंट विल आल्सो बी सेम, यानी कि इसमें भी वही करंट जाएगी जो इसमें जाएगी, इसमें भी वही करंट जाएगी जो इसमें जाएगी। कितनी जाएगी? अगर मैं तीनों को 9 ओम ले लूं तो 2 एम्पियर करंट जाएगी। कितनी जाएगी? 2 एम्पियर इन दिस, 2 एम्पियर इन दिस एंड 2 एम्पियर इन दिस। सो ओवरऑल करंट विल बी 6 एम्पियर। आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर। ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंसेस अगर सेम है, रेजिस्टेंसेस अगर सेम है तो करंट की वैल्यू भी सेम होगी। अब एक कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं, अगर रेजिस्टेंसेस की वैल्यू डबल है, जैसा हमने सीरीज में पढ़ा था, फॉर एग्जांपल ये 3 ओम है, ये 9 ओम है, आप इजीली चेक कर सकते हैं कि 3 ओम से 3 गुना है 9 ओम। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तो करंट की वैल्यू कम होगी, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तो करंट की वैल्यू कम होगी। सीरीज में हमने पढ़ा था अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तो पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन करंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी? रेजिस्टेंस के ज्यादा होने पर कम होगी। आप देख सकते हैं, इफ द पोटेंशियल इज सेम देन I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी कि पोटेंशियल सेम होने पर करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इट मींस व्हेन रेजिस्टेंस इज हाई करंट विल बी लो। तो आप देख सकते हैं 9 ओम 3 ओम से 3 गुना है, 9 ओम रेजिस्टेंस 3 ओम से 3 गुना है, तो 9 ओम में करंट 3 ओम की करंट की 3 गुना कम होगी। यू कैन सी। नहीं आया समझ में? ये सिंपल कंसेप्ट है, सुनिए ध्यान से। अगर 9 ओम रेजिस्टेंस है यहां और 3 ओम है यहां, तो ये बात तो डेफिनेट है कि 9 ओम में करंट कम होगी। यहां तक समझ में आया। 3 ओम में करंट ज्यादा होगी, ये भी आपको समझ में आया। लेकिन अब आपको ये भी समझ लेना है कि इन दोनों में जो रिलेशन है ठीक उल्टा रिलेशन करंट में होगा, यानी अगर रेजिस्टेंस 3 गुना ज्यादा है तो करंट 3 गुना कम होगी। यू कैन सी 9 ohm is 3 times of 3 ohm, then the current in 3 ohm will be 3 times of current in 9 ohm. जैसे कि पोटेंशियल आपने देखा था, पोटेंशियल डबल था अगर रेजिस्टेंस डबल था। सीरीज में अगर रेजिस्टेंस डबल था तो पोटेंशियल भी डबल था। पैरेलल में रेजिस्टेंस डबल है तो करंट आधी है, रेजिस्टेंस 3 गुना है ज्यादा तो करंट 3 गुना कम होगी, 3 टाइम्स कम होगी। तो ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आना चाहिए। यहां पर हमारे सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन प्लस न्यूमेरिकल्स फिनिश होते हैं। एक दो न्यूमेरिकल्स और सॉल्व कराता हूं। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कुछ लंबा हो गया, तो आज हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। You can also search me on YouTube, Manish Bansal classes, and you can watch all the videos related to science and English there. Thank you very much for watching this video. I hope you will stay well, stay healthy, and stay focused on your goals. Study well. Jai Hind.